السلام علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل آن لائن پر۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کلاس 12 کے بچوں کا سینٹپ ایگزام چل رہا ہے، تو میں نے کل آبجیکٹیو کی 100 آبجیکٹیو دیا گیا تھا، اس کو حل کیا تھا، اور آج میں اس ویڈیو میں سبجیکٹیو کو حل کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ کل جو کل 100 سوالات تھے جو سیکشن اے میں دیا گیا تھا، جس میں سے آپ کو 50 سوالوں کو حل کرنا تھا، اور آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سیکشن بی ہے۔ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلے کیا پوچھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ اس میں ہے قومی اتحاد، وقت کی ضرورت، اس کے بعد ہے صحت، پریم چند، رمضان المبارک، انڈین پریمیئر لیگ IPL، اور لاسٹ میں ہے میرا اسکول۔ تو دیکھیے اس میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا تھا، تو آپ کو کل 8 مارکس ملتے۔ تو میں نے کرکٹ پر مضمون لکھا تھا، اگر آپ نے واقعی میں ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ انڈین پریمیئر لیگ جو لکھا ہوا ہے یعنی IPL، وہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی کرکٹ پر مضمون جو میں بنا چکا ہوں مضمون، وہ بھی آپ لکھ دیتے تو آپ کو نمبر مل جاتا۔ خیر میں ابھی جسٹ تھوڑی دیر بعد رمضان المبارک یا میرا اسکول یا پھر پریم چند، صحت، ان سبھی میں سے کسی ایک پر مضمون بنا کر پوسٹ کر دوں گا تھوڑی دیر بعد۔ چلیے آگے اب دیکھیے سوال نمبر 2 میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح کیجیے۔ کل آپ کے سامنے 4 اشعار دیے گئے ہیں، اور اس میں سے 2 کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو بولا جا رہا ہے، اور یہ کل 4 مارکس کے ہیں، یعنی ایک اگر آپ بنائیں گے تو 2 مارکس ملے گا، اور 2 بنانے کو کہا جا رہا ہے اس لیے 4 مارکس کا ہے۔ تو ہم چاروں کو بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ ایگزام میں جائیں گے تو کس طرح سے آپ بنائیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جو یہ اشعار ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ سب سے پہلے کس کی غزل کا یہ شعر ہے، یعنی کس کی غزل کا یہ مصرع ہے، اور یہ کس مطلب پہلی شعر سے ہے یا دوسری شعر سے، سمجھے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے غزل کا ایک مصرع ہے۔ تو ٹھیک ہے، غزل کا ایک مصرع، اس بات کو تو ہم مان لیے، لیکن یہ پہلی غزل کا مصرع ہے یا دوسری غزل کا مصرع ہے یہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ مرزا غالب کے غزل کی پہلی شعر سے لیا گیا ہے۔ آپ کتاب کھولیے، اس میں آپ کو سب سے پہلے 2 غزل پڑھنے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ ایک کا نام ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اور ایک ہے سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئے، اور یہ دونوں آپ کی کتاب میں پیج نمبر 148 پر موجود ہے۔ تو یہ جو پوچھا گیا ہے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، یہ غزل کی پہلی شعر سے لیا گیا ہے، یعنی 2 جو غزل آپ کو پڑھنے ہیں اس میں سے پہلے سے لیا گیا ہے۔ تو آپ کیا لکھیں گے، یہ دیکھیے آپ جو میں نیچے لکھا ہوں نا، یہ جو شعر ہے یہ مرزا غالب کے غزل کی پہلی شعر سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے، بس آپ اتنا لکھ دیں گے تو آپ کو اگر ایگزامنر چیک کرے گا کاپی تو 1 سے 1.5 نمبر یقیناً دے دے گا۔ اب آگے یہ جو مطلب مصرع ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے یہ آپ تھوڑا بہت لکھ دیں، اپنے انداز میں لکھیں، اگر نہیں لکھنے آتا ہے پھر بھی یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو بھی آپ اگر لکھ دیں گے تو ایگزامنر سمجھ جائے گا کہ بچہ کم سے کم اتنا تو جان رہا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، اور یہ پہلی شعر ہے یا دوسری شعر، تو آپ کو نمبر دے دے گا۔ تو دیکھیے کیا لکھنا ہے آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ مرزا غالب کی غزل کی پہلی شعر سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ، اب کیا کہتا ہے تو دیکھیے اس میں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو حرف دوبارہ لکھا ہوا ہو اسے کاٹا یا مٹا دیا جاتا ہے، اور میں لوحے جہاں پہ حرف مقرر تو نہیں ہوں، پھر زمانہ مجھ کو کیوں مٹا رہا ہے اور کیوں میری جان کے در پر ہے۔ جی ہاں، یہی باتیں اس مطلب اشعار میں کہا جا رہا ہے۔ تو بس میں آپ کو جو بتایا ہوں یہی چیز آپ جا کر لکھ دیں۔ سب سے پہلے یہ چیز لکھے، یہ جو شعر ہے یہ مرزا غالب کے غزل کی پہلی شعر سے لیا گیا ہے، اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو حرف دوبارہ لکھا ہوا ہو اسے کاٹا یا مٹا دیا جاتا ہے، میں لوحے جہاں پر حرف مقرر تو نہیں ہوں، پھر زمانہ مجھ کو کیوں مٹا رہا ہے اور کیوں میری جان کے در پہ ہے۔ تو
तो जी हाँ, बस आप इतना लिख दे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर पेशे से मर जाना नहीं आता। तो उसी तरह इसमें भी लिखना है, जैसे पहले शेर में आपने लिखा था ना, उसी तरह इसमें भी लिखना है कि यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की दूसरी शेर से लिया गया है। और इस शेर में शायर कहता है कि बस आप इतना ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको मैं बताया हूँ ना कि यगाना चंगेज़ी की भी 2 गज़लें हैं। तो आप किताब खोलें और उसमें 100 पेज नंबर 153 पर जाइए, वहाँ पर दूसरी गज़ल से ये जो है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर पेशे से मर जाना नहीं आता, ये वहाँ मौजूद है। तो आप शुरू में क्या लिखेंगे, यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी की गज़ल की दूसरी शेर से लिया गया है, और इस शेर में शायर कहता है कि, और क्या कहता है, तो इस शेर में फरहाद की तरफ इशारा किया गया है और मानवी सतह पर एक नई सूरत पैदा की गई है। फरहाद ने पहाड़ खोदकर दूध की नहर निकाली थी, इतनी बड़ी मुसीबत उसने अपनी महबूबा शीरी को पाने के लिए सर की थी, लिहाजा पहाड़ का काटने वाला मर जाता है और एक रवायत कायम कर जाता है। तो जी हाँ, इस शेर में जो है ये फरहाद की तरफ इशारा किया गया है। तो बस आपको बस इतना ही लिखना है। चलिए अब आगे क्या है, आगे देखिए, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। तो जी हाँ, इसमें तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि ये किसके गज़ल का मिसरा है, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल का एक मिसरा है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले आप ये पता करें कि ये आप यगाना चंगेज़ी की 2 गज़लें आपको पढ़नी है, तो ये पहले गज़ल से लिया गया है या फिर दूसरी गज़ल से। तो जी हाँ, ये पहली गज़ल से लिया गया। आप किताब में पेज नंबर 153 खोले, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, उसी तरह जिस तरह आप 2 में लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। यह जो शेर है ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है, और इस शेर में शायर कहता है कि, क्या कहता है वो आप लिख दें। तो इस शेर में शायर कहता है कि यह खुदा ही को मालूम है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, शायर अपनी ज़ात से खुद मशकूक है। जी हाँ, बस आप इतना लिख दें, आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा भी लिखना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यह जो शेर है ये गज़ल का मक़ता है, यानी शुरू में लिख देंगे। वैसे नहीं लिखेंगे फिर भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अब आगे ऑप्शन दाल में क्या पूछा था, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग के यहाँ भी पिछड़ गया। तो जी हाँ, आपने जिस तरह से उन तीनों सवालों को बनाया था उसी तरह इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि ये किसके गज़ल का मिसरा है। तो ये जो है ये खलीलुर रहमान आज़मी के गज़ल का एक मिसरा है। तो ये तो मालूम कर लिए। अब आपको मालूम करना है कि ये खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल का पहले गज़ल से लिया गया है या फिर दूसरे गज़ल से लिया गया है, क्योंकि आपको खलीलुर रहमान आज़मी की भी 2 गज़लें पढ़नी हैं। एक है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, और एक है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। तो ये जो मिसरा है ये खलीलुर रहमान आज़मी की पहली शेर से लिया गया है। तो आपको क्या लिखना है, जिस तरह उसमें लिखे थे उसी तरह इसमें भी लिखना है कि यह जो शेर है ये खलीलुर रहमान आज़मी के गज़ल की पहली शेर से लिया गया है, और इस शेर में शायर कहता है कि, अब क्या कहता है, तो इस शेर में शायर कहता है कि मेरे दोस्त अहबाब ही अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और हालात से समझौता करते हुए दुनिया में कामयाबी हासिल कर ली, और मैं ही ऐसा बददिमाग था कि ज़माने के तकाज़ों के साथ नहीं चल सका, और इसलिए इस मामले में मैं पिछड़ गया। तो आपने देखा कि इस मतलब गज़ल के मिसरा में क्या कहा जाता था वो मैं आपको बता दिया। तो इसी तरह आपको जवाब लिखना है। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 3 में क्या है, मंदरजा ज़ैल इक़्तिबास की तशरीह सयाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए। उसकी खुशबू जिस कदर लतीफ़ है उतना ही कैफ़ो तंद व तेज़ है। रंगत की निस्बत क्या कहूँ, लोगों ने आतिश सयाल की ताबीर से काम लिया है, लेकिन आग का तसव्वुर फिर आर्जी है, और इस चाय की औलवियत कुछ और चाहती है। मैं सूरज की किरणों को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करता हूँ कि यूँ समझिए जैसे किसी ने सूरज की किरणें हल करके बलूर अफजान में घोल दी हो। तो आपको तो मालूम होगा कि आज ही मैं सुबह 7 बजे इसकी तशरीह की थी। सयाक़ो सबा की मैं अलग से वीडियो बना दी थी और उसमें यही चीज़ें मैं आपको बताया था, यानी इसी को मिसाल लेकर वहाँ मैं आपको बताया था 7 बजे सुबह में।
तो आप जाकर देख लें उस वीडियो को, क्योंकि मैं उसमें कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताया हूँ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, तो वहाँ मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख लें। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 4। अपने वालिद को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। तो देखिए ये प्लेलिस्ट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इस प्लेलिस्ट में जाना है। ये जो मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, आप वहाँ जाएँ, वहाँ पर कई ख़त हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ से जाकर देख लें। चलिए आप आगे देखिए सवाल नंबर 5 में क्या पूछा है। सवाल नंबर 5 में है दर्जे झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। जी हाँ, इसमें कुल 10 सवालात दिए गए हैं और इसमें से आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं, वो भी मुख्तसर में देना है, कोई लंबे टाइप में नहीं देना है। तो और एक सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो इसमें कितना मार्क्स आपको मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, सैयद सुलेमान नदवी की किसी एक किताब का नाम लिखें। तो आपको तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि सैयद सुलेमान नदवी का आपको क्या पढ़ना है। सैयद सुलेमान नदवी का आपको एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। तो सैयद सुलेमान नदवी का यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि एक ही किताब का नाम बताने के लिए। तो देखिए उनका कई किताब है, मैं आपको सबसे पहले नाम बता देता हूँ, जैसे अरबो हिंद की ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम, ये सब जो है ये सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताबें हैं। लेकिन यहाँ पर एक किताब की सिर्फ नाम बताने को आपको कहा जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर अरबों की जहाज़रानी लिख दिया है। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 2, सुर्खी से क्या मुराद है। तो जी हाँ, आप याद कीजिए ये सवाल कहाँ से लिया गया है। तो ये सवाल भी जो है ये सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई मजमून जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, यहीं से लिया गया है। और जब मैं सबक एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ मैं बता चुका हूँ। तो सुर्खी से मुराद क्या है? उन्वान है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 3, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि ये सवाल सबसे पहले पूछा कहाँ गया से है, तो ये हिजरत जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है, जो एक इंशाइया है, वहाँ से पूछा गया है। तो मगरिब को किसकी अलामत कहा जाता है? मगरिब को गुलामी की अलामत कहा जाता है। मैं सब बता चुका हूँ। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 4, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था। ये सवाल भी वहीं से पूछा गया है, यानी अहमद जमाल पाशा की जो हिजरत है वहीं से पूछा गया है और ये भी मैं बता ही चुका था। तो जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ है? जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था? जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। जो ये सवाल जो है ये आपके किताब में पेज नंबर 35 से पूछा गया है और मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, ये भी पेज नंबर 35 से ही पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था। मैं बार बार बता रहा था ना कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम महिउद्दीन अहमद था। और इनका आपको क्या पढ़ना है? ख़त पढ़ना है जिसका नाम गुब्बारे खातिर से 3 खतूत है, जो आपके किताब में पेज नंबर 95 पर मौजूद है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 6, तोहफ़ा और सौगात की बात किस नज़्म में आई है। जी हाँ, आप याद कीजिए, तोहफ़ा और सौगात की बात नज़्म गुफ्तगू में कही गई है, जहाँ आपको मालूम होगा कि दर्द और प्यार के तोहफ़ा और सौगात की बात कही गई है इस नज़्म में। यानी तोहफ़ा और सौगात की जो बात कही गई है वो सबसे पहले ये नज़्म गुफ्तगू में कही गई है और ये जो है दर्द और प्यार के तोहफ़ा और सौगात की बात कही गई है। जी हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस तोहफ़ा और सौगात की बात नज़्म गुफ्तगू में कही गई है, तो आप क्या कहेंगे? दर्द और प्यार के तोहफ़ा और सौगात की बात नज़्म गुफ्तगू में कही गई है। खैर आगे देखिए सवाल नंबर 7, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है। जी हाँ, अली सरदार जाफरी का आपको 2 नज़में पढ़नी है, एक का नाम गुफ्तगू है और एक का नाम मेरा सफ़र है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा। तो अली सरदार जाफरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से था। चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 8, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है। जी बताइए आप लोग, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है। तो जी हाँ, आप लिखेंगे हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है।
और ये जो है खेती नज़म से लिया गया है, जिसके लिखने वाले अमीर हनफी है। और आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, एक अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या तमाम इंसान वक्त के रुख में हैं, तो वहाँ भी क्या जवाब होगा, हाँ तमाम इंसान वक्त के रुख में है। और चलिए अब आगे देखिए सवाल नंबर 9, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? जी हाँ, आप लोग बताइए अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 9 सितंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। बस आप इतना लिखे, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया कि कहाँ हुआ था, तो आपको नहीं बताना है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि क्या पता आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 9 सितंबर 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। और इनका आपको क्या पढ़ना है, इनका भी एक नज़्म ही पढ़ना है जिसका नाम है बरक़े कलीसा। चलिए मैं इनकी पैदाइश भी बता देता हूँ। तो इनकी पैदाइश जो है वो अक्टूबर 1845 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, और इनकी वफ़ात भी इलाहाबाद में हुई थी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि अकबर इलाहाबादी। चलिए अब आगे सबसे लास्ट सवाल है, मुतशायर का बस चले तो वह कौन सा काम करना चाहता है? तो आप लोग बताइए, मुतशायर का बस चले तो वह कौन सा काम करना चाहता है? मुतशायर का बस चले तो वह अकबर इलाहाबादी के दीवान पर कब्जा जमा लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि मुतशायर के लफ्ज़ी माने क्या है, बनावटी शायर, समझे, यानी किसी दूसरे शायर की गज़ल को लेकर अपना नाम कमाना जो चाहता है उसी को हम मुतशायर कहते हैं, यानी बनावटी शायर कहते हैं। तो ये कुल 10 सवालात थे, जिसमें से आपको 5 सवाल बनाने थे, तो ये मैं आपको बता दिया। अब आगे देखिए सवाल नंबर 6 में क्या पूछा है, मंदरजे झैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। कुल आपको 6 सवाल दिए गए हैं और एक सवाल की कीमत कितनी है, 5 नंबर है बाबू, इसलिए इसे ही कहते हैं हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जो मैं आपको बताता था जब सबक को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं आपको बताता था ना कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, तो इसी को ही कहते हैं। तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, नज़्म आवारा में रात के जो मनाजिर बयान किए गए हैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो इन सब सवालों को मैं यहाँ पर हल नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आप खुद किताब खोलें, वहाँ ये सारे सवालात मौजूद हैं, उसको आप खुद से बनाएं, या फिर मैं जब इस सबक को बताऊँगा तो वहाँ तो मैं ज़रूर बताऊँगा ही। चलिए आगे है, बागो बहार की नस्र की क्या अहमियत है? तो जी हाँ, मैं सबक को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ बता ही चुका हूँ। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 3, वली दकनिया मिर्ज़ा गालिब के 2 शेर लिखकर उनके माने बताइए। तो चलिए हम सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब के 2 शेर आपको बताता हूँ। एक मैं अभी जस्ट आपको बताया था ना, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, तो इसके बारे में तो मैं आपको माने बता ही चुका हूँ। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहाँ, देखना उन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। तो जी हाँ, ये जो शेर है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है, और ये जो शेर है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की दूसरी गज़ल से लिया गया है। और इस शेर में शायर कहता है कि अगर मैं यूं ही रोता रहा तो दुनिया वाले देखेंगे कि बस्तियां वीरान हो जाएंगी, बस्तियों का वीरान होना रोने की तासीर से कहा है, ये इश्कों के तूफ़ान और सैलाब से, यह मज़मून मुबालगा के अलावा पामाल सा है। जी हाँ, तो बस आपको इतना ही लिख देना था। और तो ये मैं मिर्ज़ा गालिब की 2 शेर बता दिया। अब आगे है वली दकनी। तो वली दकनी का भी मैं 2 शेर बताता हूँ, जैसे अगर बाहर आपस के घर सू मोहन यक कदम निकले, तमाशा देखने उसका हर एक सीने सू गम निकले। और एक और मैं आपको बता दूं, पूछे यार ऐन काशी है जो गई दिल वहाँ का बासी है। जी हाँ, तो आप इसका मतलब माना आप खुद से बना लेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो वक्त लगेगा। चलिए उसके बाद है ऑप्शन डी में, अकबर इलाहाबादी की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो आप खुद से बना लेंगे, यहाँ मैं बता नहीं सकता। आगे है सिनफ़े क़सीदा के अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए, और आगे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी की खुसूसियात बताइए। तो जब मैं सबक को एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ बता दूंगा ही, लेकिन अगर आपके पास गाइड वगैरह है तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 7, दर्जे झैल इबादत की तलखीस पेश कीजिए। मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हिजरत तो हजरत इंसान की सरशिस्त में दाखिल है। उसकी हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था, उसको हुक्म सफ़र हुआ था कि जाओ और हमारी दुनिया में आबाद हो जाओ। इंसान जन्नत की आरज़ू और तवक्का में रोज़ आफरीन से हिजरत में मसरूफ़ है कि यह जन्नत से निकाला हुआ इब्ने आदम भी जन्नत तक कैसे वापस पहुँचे, जो उसकी आखिरी और मुस्तकिल अकामत गाह है, जिसमें पहुँचने के बाद हिजरत का असली सिलसिला अपने अबदी सिरे से मिल जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले तलखीस निगारी आखिर कहते किसको है, यानी इसका मतलब क्या है। तो तलखीस निगारी का मतलब है असल इबारत को कम करके लिखना, यानी 1/3 में लिखना, समझे ना। यानी इसमें जो गैर ज़रूरी बातें हैं ना उसको छांट देना है आपको और उसको मतलब 1/3 में लिख देना है, इसी बस इतना ही है। तो आप देखिए मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हजरत इंसान की सरशिस्त में दाखिल है। अब इसमें आपको जो गैर ज़रूरी बातें लग रही है उसको आप छांट दें और 1/3 में लिख दें, बस आपको इतना ही करना है तो आप कर लेंगे, क्योंकि ये आसान है, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये जो है ये हिजरत जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है वहाँ से लिया गया ये है। चलिए उसके बाद आगे है या। अगर आपको ये नहीं इस बात समझ में आती है तो नीचे भी ऑप्शन दिया गया है कि दर्जे झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए, इब्राहिम सक्का, टूबा टेक्सिंग या फिर हिजरत। तो जी हाँ, मैं इससे पहले जो संडे को टेस्ट लिया था उसमें कई बच्चों से मैंने सबक को एक्सप्लेन करवाया था, तो जो वाकई में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर सना फातिमा, उसी तरह मुबशरा परवीन थी, उसके अलावा चांदनी खातून थी, अबू सुफियान था, उसके अलावा और भी कई बच्चे थे। उन लोगों से मैंने सबक को एक्सप्लेन करवाया था और उन्होंने सबक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आप अगर वीडियो देखे होंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर जाएंगे, और आप अगर नहीं देखें तो जाए आप वीडियो देख ले, आप खुद ब खुद आपके दिमाग में मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह इस सबक को खुलासा बयान करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।